Hello, everyone, and you're watching N6 TV Live and N6 TV Facebook and YouTube page. We're watching Match Point with your host Hamza Ilahi. And what a day of cricket we had today. I think there are plenty of records have been broken. They're really good performances we're going to talk about today. And with me joining is our usual panel, Dr. Adnan from Toronto. He's a sports analyst, and Gurpreet Purbaji, a sportscaster from Toronto. And Rangaji has specially joined us from Singapore. He made all this effort from coming all the way from there. Thank you, everyone, for joining. Let's move towards our headlines. जैसे कि हमने आज के मैच के बारे में बहुत सी चर्चा कल की थी कि इंडिया ऑन द बुक्स बहुत अच्छा लग रहा है और 80-20 की प्रेडिक्शन डॉक्टर नान की थी। गुरप्रीत जी थोड़ा-सा टेंटेटिव होके दे रहे थे कि जी 60-40 है। मैंने उस वक़्त भी कहा था कि इंडिया इज़ द चैंपियन इन वेटिंग। इट्स ओनली काउंटिंग डेज़ अंटिल वी रीच द फाइनल and India will lift the trophy. That is my prediction, and it's still going strong. Let's move towards Dr. Adnan and let's move towards our headlines for today. Doctor, To all of you, ji. Welcome to Ranga ji. Welcome to Gurpreet ji. Thank you, Hamza. First of all, for joining in the match point. So, lot of news. There was a match at Wankhede, but might be I may say that there was no match at the Wankhede. India beat Sri Lanka by 302 runs, the second biggest margin of victory by runs in the ODI and especially in the World Cup, the biggest margin yet. Australia beating the Netherlands by 309 runs at Delhi on 25th of October 2023. India could merely not batter it by the 5 runs. Sri Lanka versus India was the game I saw, and we thought that it has been started from the Asia Cup final, where they left out in the Asia Cup from 50 all out. They started from there 55 all out. Sri Lanka have now lost 20 wickets for the last 105 runs in the ODIs against India. This is the worst ever record in the 100 years of cricket history. India became the first team to reach the semi-finals of the 2023 World Cup. So globally, the Indian fans all around the match point who are watching us around the globe, congratulations to all the fans. So by this joining in the semi-finals, now Team India has made it the eighth record time. This is the most number of time any team has joined the semi-final, but they are not alone over there. Of course, they are along with one of the best knockout specialists, Australia and New Zealand, who have also joined the semi-final overall 8 times. If Australia and New Zealand join this time, hopefully they join this time, then India will again become number two because both of them will join for the number 9 times. Something about the big lines headlines for the Indian batsman Virat Kohli, the runs machine from India. He has completed 17,000 runs in the wins in the international cricket. I say wins means wins. Third player after Sachin Ramesh Tendulkar and Ricky Ponting to do so. Virat Kohli is now part of the most wins for India in the international cricket history with a 308 wins, and he has broken the record of Sachin Tendulkar of 307 wins. All the news from the India, and the next news is from the spearhead Mohammad Shami, the leading wicket taker for India in the 48-year history of World Cup. And we'll tell you later on once the show starts that what he has done and the what wonders he have done in these games. Pakistan still the news that the Pakistan is not on the ladder, Pakistan is not on the points table, but Pakistanis knows the art of remaining in the news. So Hamza, if we can see the picture from the production room for the catching efficiency in the World Cup, Pakistan became the number one team in the catching efficiency in spite of dropping some blunders. And Sri Lanka is at the bottom of the list, telling us that what happened to them today. So look at the list, Pakistan's catching efficiency, and later on in the program, we will discuss it again. Next news from the Australian point of view, not a good news. Maxwell injury and the Mitch Marsh
some of the family reasons or might be the injury they are not disclosing, have been ruled out of the English match in the World Cup. So against the ODI Ashes, both the stars of the Australia, they will not be playing in the game. So let's move to the Hamza. What's next in the match? India versus Sri Lanka. Let's move towards our post match, which is India versus Sri Lanka. A huge total have been put up by India, and again we missed Virat Kohli's 100 and Shubman Gill. They were really played well and make it all the way to 80s and 90s, late 80s for Virat Kohli and early 90s for Shubman Gill, and a lollipop out after a really good one, a really good received ball by the left armour from Sri Lanka, and Virat Kohli got deceived and been taken out on 88. Your take on it, Gurpreet? Let's start with you today. How do you rate the batting side today? Before rating Team India's batting, I just want to cover one more news. The term basball, which we already know associated with the England, is officially added to Collins' dictionary, and they have given it a definition: a style of Test cricket in which the batting team attempts to gain the initiative by playing in a highly aggressive manner. So that has been officially added to the डिक्शनरी कॉलिंस डिक्शनरी तो बासबॉल जिसमें आप इंग्लैंड खेलता है कि टेस्ट क्रिकेट को प्रॉपर तरीके से तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रैंडन मकल्लम को अब वो अमर हो गए हैं क्रिकेट की हिस्ट्री में लेट्स टॉक अबाउट आज की गेम इसमें कोई मैच नहीं था जैसे डॉक्टर अदनान ने बोला कि वानखेड़े पे मैच था पर मैच नहीं था और हैंड्स डाउन ऐसा लग रहा था कि इट इज़ मधुशंका वर्सेस टीम इंडिया और उसमें भी टीम इंडिया ने जब तीन जानों ने बहुत अच्छी हाफ सेंचुरीज कर दी आपने 92 88 एंड 82 एंड रेस्ट वाज अ मियर उसमें औपचारिकता ही रह गई थी कि क्या श्रीलंका इसके क्लोज जा सकता है या नहीं और पहली बॉल पे ही बुमराह ने जब विकेट लिया तो यू नो द साइंस वर ऑलरेडी ऑमिनस कि इंडिया एक बारी फिर से इजीली इस मैच को जीत लेगा और उसके बाद फिर दो चीज़ें मिसिंग थी इंडिया की कंप्लीट इस पजल को कंप्लीट करने में एक शुभमन गिल बैटिंग में फॉर्म में नहीं थे आज वो भी फॉर्म में आ गए हैं और बॉलिंग में जो था मोहम्मद सिराज अपनी लय में नहीं दिख रहे थे जैसे ही श्रीलंका की टीम उनके सामने आई है उन्होंने एशिया कप जहां से छोड़ा था वहीं से दोबारा शुरू किया अब वो भी फॉर्म में आ गया है तो अब जब हार्दिक पांड्या टीम में आ जाएंगे तो इट विल बी अ कंप्लीट टीम एंड वंस अगेन कंप्लीट परफॉर्मेंस बाय डोमिनेटिंग इंडियन टीम दिस वर्ल्ड कप बहुत बहुत मुबारकें जितने भी हमें लिसनर्स सुन रहे हैं जो फैंस आउट देयर फॉर टीम इंडिया और न्यूट्रल फैंस भी जिनको लग रहा है कि इस बार की इंडिया की टीम कंप्लीट टीम है सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं ODI match with a margin of 300 plus runs twice now. सो ग्रेट अचीवमेंट पर रोहित भैया खुद तो आज कुछ ना किया लेकिन चलो कुछ और अचीवमेंट कर ली और इंडिया का वन डाउन दोबारा टेस्ट किया गया लेकिन वन डाउन बड़ा महान है उसको क्या टेस्ट करना है टेस्ट करने की जरूरत नहीं वो ऑलरेडी टेस्ट किया हुआ है टेस्टर से हर तरफ से इंडिया 357 फॉर 8 is the highest score in the World Cup history when no batters माफ कीजिएगा when no batters have scored 100. So lot of unlucky batters from the Indian top orders unable to convert their 90s to the 100. रंगा जी से अभी बात करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर लेकिन एक बात जो मैंने देखी वो ये थी कि जब विकेट गिर गया आप देखें कि श्रीलंकन बॉलर्स का इम्पैक्ट बड़ा स्ट्रांग था मधुशंका की बात की गुरप्रीत जी ने तो मधुशंका बड़ा अच्छा जा रहे थे और चमीरा के साथ मिलके जो पहला स्पेल हुआ है मुझे वो स्पेल बड़ा अच्छा लगा और बड़े दिल को तकवीत पहुंची लेकिन देखें गेम बनी होती है शुरू से जब 4 पे एक आउट हो गया आई थिंक 4 था स्कोर जब एक आउट हुआ था और उसके बाद अगली विकेट जब गिरी तो इट वाज 193 189 की पार्टनरशिप हुई गिल के और कोहली के मां बहन और दोनों को किसी भी लम्हे मुझे नहीं लगा कि उनको कोई जल्दी है
उनको अपने ऊपर इतना एतबार था, और यही होता है कॉन्फिडेंस वन डाउन का, कि वो दूसरे को भी खिलाए, ओपनर को भी इन्होंने खिलाया और खुद भी खेले, और खूब खेले, और श्रीलंका के साथ खेले, उनको भी खिलाया और हर तरह के लोगों से खेले। अच्छा, 4 की एवरेज भी रखी, 5 की भी रखी, 6 की भी रखी। अनलकी रहे, इतनी जबरदस्त बॉल कर रहे थे और चमीरा के साथ, और 3 चांस मिले मधुशंका को। आई थिंक एक कैच में ड्रॉप हुआ इनका, मुझे, अगर मैं, कुंदरत्ने ने आई थिंक ड्रॉप किया था, अगर मैं गलती पे नहीं हूं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा। कुंदरत्ने ने मुश्किल चांस थे, लेकिन देखें वो बचे, और उस वक्त कोहली अभी डबल फिगर्स में नहीं थे। कैचेस विन मैचेस, जो पहले 6 ओवर थे उसमें उन्होंने अपना इम्पैक्ट डाला। उसके बाद दे वर नेवर इन द वैन खड़े में श्रीलंका की वापसी एक ही सूरत में हो सकती थी, कि जब पहला आउट होने के बाद कोहली को चांस मिला, शुभमन को मिला, अगर वहां पर वो कंट्रोल कर सकते, क्योंकि मधुशंका इतनी मेहनत कर रहे थे, आपने देखा कि उनका बॉल मूव भी कर रहा है, स्विंग भी कर रहे हैं, उनका बड़ा मोलिक एक वेपन है स्लोअर वन का, बहुत अच्छा करते हैं स्लोअर वन। और इसके अलावा वो यॉर्क बड़ा अच्छा करते हैं। लेकिन जब शुरू में एक दफा उनको फीट दे दिए शुभमन गिल को, एंड दीज गाइस व्हेन यू गिव देम रूम इन द वेन खड़े इन द पैक्ट in the blue environment, then they will not do any mercy with you. So this was the problem with the Sri Lankan top bowling. Virat Kohli has scored now 2506, 2506 रन 50 इनिंग्स में, एट द एवरेज ऑफ 62.65, इंक्लूडिंग 10 हंड्रेड्स एंड 11 फिफ्टीज वर्सेस श्रीलंका। दिस इज हाउ ही लव्स प्लेइंग अगेंस्ट श्रीलंका। इनका 117 50 प्लस स्कोर था 276 इनिंग्स में से। और मेरे पास कुछ और चीजें भी है, मैं शेयर करता चलूंगा, कि फास्टेस्ट 8000 ओडीआई रन्स इन द एशिया, मोस्ट 1000 ओडीआई रन्स इन अ कैलेंडर ईयर। नाउ विराट कोहली 8 पे हैं, उन्होंने सचिन का 7 बारी 1000 कैलेंडर ईयर्स में करने का रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक कर दिया है। नाउ ही इज ऑन द 8th, 4000 international runs versus Sri Lanka, most runs in the World Cup 2023, and most 50 plus scores by a non-opener. Rangaji, what happened in the beginning and what they did with Sri Lankan Chamira and Madhushanka, इन्होंने क्या कसूर किया था? Wow. Good evening, everybody in North America, and to everybody watching in Asia. Good morning and good afternoon. A wonderful, wonderful result for India. Absolutely proud moment. And as Gurpreet ji said, sabhi ko shubhkamnaएं and sabhi ko badhai bhi कि we got 2 more games left in the league stages before we enter the semis. We're already in the semis, but I think 4 games to go for the mega win that we've all been waiting for. 12 साल हो गए last time जीतने से. कल अच्छी फीलिंग थी कि फाइनल वाली फीलिंग दोहराई गई. द सेम स्टेडियम, सेम ओपोनेंट. हालांकि रिजल्ट वाज अ लिटिल मोर वन साइडेड, एंड टू थिंक दैट श्रीलंका कैपिटुलेटेड टू दैट काइंड ऑफ अ स्कोर. अगर आप देखें तिरुवनंतपुरम में जनवरी में 73 पे ऑल आउट हुए थे 390 चेस करते हुए. सो जो आज की तारीख में ओडीआईज में सबसे बड़ी टारगेट विक्ट्री है 317 जो इंडिया के नाम पे दर्ज है. तो एक ही साल में दे लॉस्ट बाय 317 टू इंडिया, got bowled out for 50, and again lost by 302. That speaks volumes of how much Sri Lankan cricket has gone down over the time, and how much India has dominated them in the recent encounters. So kal ke match mein, I think Dr. Adnan has brought up a very good point. At 4 for 1 at the end of the first over, they could have done better, putting more pressure. Ball was seeming quite well at the Wankhede. मल्टीपल चांसेस. एक तो काफी ईजियर भी था, द लॉब ऑफ कोहलीज बैट टू चमीरा, जो कॉटन बोल्ट का चांस था, जो उन्होंने एक्चुअली 3 चांसेस ट्राई करे थे और फिर भी उन्होंने ड्रॉप कर दी थी. दैट वुड हैव बीन अ वेरी गुड विकेट टू हैव. गिल वाज स्ट्रगलिंग, डिडंट ओपन द अकाउंट फॉर अ व्हाइल, बट एक बार उनके बैट पे वो बॉल लग जाती है एंड दैट स्वीट साउंड कम्स आउट, द कॉन्फिडेंस बिल्ड्स अप. एंड if you start bowling short to him, his favorite shot is that when he transfers the weight onto his back foot and he doesn't even swivel, वो खड़े खड़े फ्रंट बैक फुट पे बस अपना वेट ट्रांसफर करके मिड विकेट के ऊपर बॉल मार देते हैं. तो once he starts getting that shot going, you know he's confident. So I think Sri Lanka missed a big trick not picking up the second wicket in the first 6 to 10 overs. उसके बाद तो it was a procession कि
30 ओवर में 190 रन मार दिए उन्होंने before the next wicket fell. And when you have a platform like that for KL Rahul to come in or for Sky to come in or for Shreyas Iyer to come in, वो लोग तो पहले ही गेंद से मारने लग गए थे. All of them, in fact, I think if I'm not mistaken, everybody yesterday were at over a run a ball. So even Rohit Sharma got out for 4, but all of them were at a strike rate of over 100. हर बंदे ने कल 100 के ऊपर के स्ट्राइक रेट में बैटिंग करी है. So it just tells you. In fact, it was lovely to see Shreyas Iyer back in form. उनके जगह पे काफी चर्चा हुई थी. There was a lot of discussion about whether we should get Ishan Kishan in the mix because he adds that extra dimension of being a left-hander, makes the bowler think with different lines to bowl. But with Shreyas coming into form yesterday, I think it feels a lot more well-rounded because our number 5 is also scoring well. Number 6 is also scoring well. This gives a lot of confidence to Rohit Sharma as a captain because आगे चल के उन्हें बस अच्छी खबर ही मिलनी है in the form of potentially Hardik Pandya returning for the game in Bangalore against Netherlands, जहाँ पे उनको एक रन दे सकते हैं कि भाई he can test himself to see how his feet feels, and that makes the team a little more stronger. शायद उस टाइम सूर्य कुमार यादव को उनके लिए जगह छोड़नी पड़े, मगर what that does is जो इस वक्त bowling बहुत ही strong लग रही है, वो एक और लेवल स्ट्रांग हो सकती है विद पांड्या कमिंग इन एज फर्स्ट चेंज अलोंग विद मोहम्मद शामी. और अगर शामी जी की बात करें तो व्हाट अ रिटर्न इनटू द टीम. पहले 4 मैच खेले नहीं मगर 3 मैच में हाईएस्ट विकेट टेकर बन गया इंडिया के लिए इस वर्ल्ड कप में और हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कप्स में भी. इट्स क्वाइट इंप्रेसिव दैट द नंबर ऑफ गेम्स ही इज प्लेड टू अचीव दैट एब्सोल्यूट ब्रिलियंट number is quite staggering. I think he's got 45 wickets across the history of World Cups, makes him the highest ever by beating Zahir Khan and Javagal Srinath. मेरे आंकड़े शायद गलत हो सकते हैं तो डॉक्टर अदनान प्लीज फील फ्री टू करेक्ट, but he's also one of the quickest to get there in terms of number of matches too, so that's quite Yeah, impressive in terms of what we he will achieved. come, Rangaji, on the bowling, Indian bowling. One thing we forgot, I think, we didn't mention, and Gurpreet ji, I think, also forgot, and you, the major mistake, 2 days, 2 games, 2 mistakes. New Zealand put South Africa into the bat, and and now Sri Lankan captain put India into the bat. क्या सोच के इतना बड़ा बलंडर किया था इस फ्लैट ट्रैक के ऊपर. और आई थिंक कि अगर इंडिया वुड हैव बीन प्लेइंग सेकंड, द मूवमेंट व्हाट बुमराह वाज गेटिंग, and if there would have been Madhu Shankar, India could have been, I don't say India would have lost the game, but the result would have been would have been some different result. And if Sri Lanka would have been batting, their batting performance would not have been so much under pressure. आई थिंक कि एक तो इसकी वजह ये भी है कि श्रीलंकन टीम सारी नई है, पूरे लड़के, इनका एक क्लीन स्वीप हुआ, इनका जो एक नया एक टीम जुड़ी थी, सीनियर प्लेयर्स इनके साथ रखे नहीं गए, स्पिन अटैक पोटेंट नहीं है, ठीक शाना अपना इम्पैक्ट नहीं दे रहे, अभी तक वो कोई खास कारकर्दगी देने में कामयाब वो अपना तासर नहीं दे सके इम्पैक्ट. श्रीलंका हैज बीन फेमस फॉर द मुरलीधरन, दे हैव बीन फेमस फॉर द रंगाना हेरात, they have been famous for the Hasaranga, but that class which puts the batsman at the back seat, that force we cannot see from the Theekshana. अब एक तरफ से तो मधु शंका लगे हुए थे, इवन उन्होंने 18 विकेट्स के साथ वो लीडिंग विकेट टेकर भी हैं, लेकिन उन्होंने रन्स बड़े लीक कर दिए. अब अगर मैं रन्स की बात करता हूं तो भी शायद इतने वो मैं उनको ज्यादा क्या होगा कहना, क्योंकि जब इंडिया इतनी फ्लो में है, जो इंडिया ने बैटिंग लाइनअप ने किया उनके साथ, उसके अंदर उस रन्स के फ्लो को रोकना उनके लिए मुमकिन नहीं था. 80 रन्स दिए उन्होंने मधु शंका ने, और ये फाइफर के साथ सेकंड एक्सपेंसिव स्पेल था. द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पेल with a fifer was Adil Rashid on 27th of February 2019 World Cup game against West Indies, England versus West Indies. तो मधु शंका का इतना उसमें कसूर नहीं था. तो what is your say, both of your take on the toss? That I toss think would have helped the Sri Lankan bowlers? I think New Zealand was a big blunder. I'm sure Tom Latham will agree कि उस pitch पे getting South Africa to bat and then also getting their line and length so wrong with Quinton de Kock and Van der Dusen was a big mistake. But अगर कल का देखा जाए तो it was an interesting one because I think the previous game that Sri Lanka played against India was in their head.
जब उन्होंने पहली बैटिंग करी एंड दे वर बोल्ड आउट फॉर 50, I think that probably played a bit of a part in getting India to bat first. And Sri Lanka also, I think, in the tournament has chased down a good score. So they probably thought they can chase it down as well. So I think a few things played in their head. There was a bit of seam movement towards the start, which actually accounted for Rohit Sharma's wicket, which accounted for Virat Kohli struggling. So उन्होंने expect करी थी जो seam movement मधुशंका को मिल रही थी, the way he was troubling the bowlers. They thought they will get more troubled by Bumrah and Siraj and Shami. तो शायद उस बात के लिए that was their thought, but I think it backfired pretty bad. But अगर आप देखें कि जिस तरह से इंडिया bowling कर रही है, bowling first could have also created a significant impact with the moving ball, with Bumrah bowling the way he was bowling. But yes, New Zealand, I would completely agree. It was a bit of a surprise. Even the cricket commentators were quite surprised that New Zealand chose to field first, and उसका result तो देख लिया था हमने. गुरप्रीत जी, आप मुझे बताइए कि इंडिया स्कोर्ड 93 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स इन द लास्ट 10 overs, 5 boundary-less overs, and if they are playing with a knockout specialist Australia, things could have been different in this part of the time when India would have been playing. कहाँ गलती हो गई? जद्दू भैया, छक्कों के शहनशाह, बेताज शहनशाह, चेन्नई सुपर किंग्स, क्या कैलकुलेशन, कहाँ इनको दिक्कत आ रही थी? क्या आप समझते हैं? स्काई आल्सो टच में नहीं है. अभी भी लगता ही है कि स्काई एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतरे ओडीआई की. ही इज अ 20 ओवर फॉर्मेट बैट्समैन, yet he needs some development. What is your say on this? जी बिल्कुल, पहले तो सूर्य कुमार यादव वो जो वनडे फॉर्मेट है उसका जो कोड है उनसे अभी तक वो ठीक से उनको नहीं समझ में आ रहा कि किस पेस पे उनको इनिंग करनी है. ऑल्दो जो उनकी आज विकेट भी गिरी है वो कोई ऐसा शॉट नहीं था कि उन्होंने गलत शॉट मार दिया, वो ग्लव से लग के गई है, इट वाज वेरी फेंट टच, उस पे वो आउट हुए हैं. लेकिन यही प्रॉब्लम है इंडिया की, थोड़ी सी टेल लंबी हो जाती है, दैट इज वेयर शार्दुल ठाकुर गेट्स द बेनिफिट, बिकॉज टेल लंबी हो जाती है, उनको गेम खेलने को मिल जाती है. अदरवाइज ही शुड नॉट बी इन द स्कीम ऑफ थिंग्स. और इसी वजह से शामी बेचारे बाहर बैठे थे, क्योंकि शामी, बुमराह, सिराज ये बैट्समैन अच्छे नहीं है, और इनमें कुलदीप यादव भी आप ऐड कर लो तो लिटरली नंबर 7 पे हमारी बैटिंग खत्म हो जाती है, और इसीलिए शार्दुल ठाकुर को खिलाया जाता है. तो इसी वजह से जडेजा और उनके साथ जब खेल रहे थे श्रेयस, तो दे टुक द गेम डीपर रादर देन लूजिंग. बहुत जल्दी एम अगर 400 का कर लेते और 325 पे आउट हो जाते तो दे वुड हैव नॉट बीन एबल टू अचीव 358. तो उसमें क्या हुआ कि वो 5-5 6-6 रन तो करते रहे, बीच में 1-2 ओवर उनको एक 15 रन वाला आ गया, एक 19 वाला आ गया, तो इवेंचुअली दे रीच्ड व्हाट दे वर एमिंग फॉर 350 प्लस, एंड मे बी दे वर 10 शॉर्ट वेयर दे शुड हैव एम्ड इन द बिगनिंग. पर फिर भी वो एक अच्छा स्कोर कर लिया था, और यही वजह है कि टेल लंबी होने की वजह से इंडिया के पास मिलर और क्लासन जैसे हिटर नहीं है. तो इंडिया को अपने जो स्किलफुल बैट्समैन है उन्हीं के साथ खेलना होगा कि सिंगल और डबल की गेम खेलना है. वंस यू रीच अ स्कोर विच यू थिंक अवर बॉलर्स कैन डिफेंड, देन यू गो फॉर ब्रेक लूज, अदरवाइज यू कंटिन्यू प्लेइंग द वे यू आर. क्योंकि इंडिया की स्ट्रेंथ ये है कि इंडिया दूसरों पर फोकस नहीं करता कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, दे कंटिन्यू टू प्ले विद देयर ओन स्ट्रेंथ. और यहीं पे न्यूजीलैंड और श्रीलंका ने जो है गलती करी. आप टॉस की बात कर रहे थे, बिकॉज रादर देन कंसंट्रेटिंग ऑन देमसेल्फ वो कुछ और सोच के चल रहे थे कि ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, वेयर एज इंडिया थिंक्स अगर हम टॉस जीते हम तो चेज करेंगे, वी नो व्हाट टू डू, एंड वी हैव द किंग ऑफ चेजेस विद अस इन प्लेइंग 11, तो हम तो चेज करेंगे. और अगर दूसरी टीम उनको पहले खेलने के लिए बुलाती है तो देन दे पुट अ डिसेंट स्कोर ऑन द स्कोर बोर्ड, राइट. ऐसा नहीं है कि दे एम फॉर 400 एंड अप 150, तो 250 प्लस तो इंडिया हर मैच में कर ही रही है जी. जी आई थिंक उसमें अगर बिल्कुल जी, आप बात जी इस मिक्स में अगर आप पांड्या को ऐड कर दें, सो देन इट प्रोवाइड्स दैट एक्स्ट्रा इम्पेटस टुवर्ड्स द एंड, जहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमारी टेल लंबी लग रही है. सो बट व्हाट यू हैव टू आल्सो अप्रिशिएट कि इंडिया हैजंट बीन बोल्ड आउट इन द एंटायर वर्ल्ड कप. तो वहाँ पे भी उस दिन जैसे हमने बात करी थी, देयर वर 21 रन्स एडेड बाय द 9th विकेट. तो कुलदीप यादव ने और मोहम्मद शामी ने थोड़ा दे शोड सम कैरेक्टर व्हेन दे प्लेड, राइट. In fact, उस दिन शामी नहीं था, but it was with Kuldeep Yadav playing there. बुमराह एंड कुलदीप. Bumrah and Kuldeep Yadav. So thank you. So इसमें ऐसा लग रहा है कि if Pandya also comes in, he creates that extra padded cushion to the whole perspective of the lineup.
So getting that 94 for 4 of 10 overs is a little scary, because as Dr. Adnan pointed out, against Australia that could prove dangerous. But consistently getting over 9 or 10 in the last 10 overs is good, and with someone like Hardik Pandya coming back in, वो शायद 11 or 12 भी हो सकता है per over. So that could be a good place to be in. जी, बात को आगे बढ़ाते हैं कि इंडिया फाइनली पोस्टेड 357 and the highest ODI target Sri Lanka successfully chased is 322, and they have not done it once, they have done it twice. 322, once against England on 1st of July 2006, and then against India on 8th of June 2017, both times successfully. So 322 is the highest margin, but the Indian pace too good. The Indian pace trio was at its best. We have seen in the Asia Cup, from where लगता ये था कि सिराज सोए हुए थे, जहां से वो बॉल करके हटे एशिया कप से, नींद पूरी करके उठे और वहीं से बॉलिंग शुरू कर दी. तो मोमेंटम वाज देयर फ्रॉम द ग्रैंड फिनाले ऑफ द एशिया कप. First ball wicket for Bumrah, first ball wicket for Siraj, and first time India have dismissed both openers for the first ball duck in the ODIs. Both openers dismissed for a golden duck in the Cricket World Cup. This never happened in the history before. और जो गोल्डन डक के अलावा अगर पहले दोनों माफ कीजिएगा, पहले दोनों ओपनर्स अगर बोल्ड हुए हो तो ये पहले हो चुका है. लेरू थिरमैने और तिलेक दिलशान, जिनका ताल्लुक श्रीलंका से ही है, बदकिस्मत टीम वर्सेस अफगानिस्तान ने ड्यूरेंट इन 2015 ये अनवांटेड कारनामा सर अंजाम दे चुके हैं. और इसके बाद 2019 में मैनचेस्टर में मार्टिन गुप्टिल और कॉलिन मनरो वेस्ट इंडियन टीम के खिलाफ कर चुके हैं. और अब निसांका और कनुरत्ने ने ये तीसरी मरतबा ये काम किया. श्रीलंका once 22 for 7, 5 batters out for 0 and 2 batters out for 1. कोई न्यूमेरिकल गेम चल रही थी 0 और 1 की. स्कोर कार्ड जब मेरे सामने आया तो थोड़ी देर में मैच से अवे था, मुझे कुछ समझ ही लगी कि क्या हुआ है ये. लेकिन समझने में ज्यादा देर नहीं लगी, क्योंकि एशिया कप के फ्लैशबैक्स अभी तक मेरे दिमाग में मौजूद थे. Only the second instance when the top 4 batters aggregating just 1 run for a team in the ODIs. इससे पहले ये काम हो चुका है, और ये काम हमें कौन दिखाएगा? हमजा दिखाएंगे हम स्टूडियो से. हमजा, 2 स्कोर कार्ड दिखाइए, आपके पास पड़े हुए हैं स्टूडियोज में. एक स्कोर कार्ड तो श्रीलंका का है और एक और टीम का है. अगर हम देख सकें और आप एक्सप्लेन कर सकें मुझे उस स्कोर कार्ड को, तो ये बात समझने में इतनी दिक्कत नहीं होगी देखने वालों को. ब्लैक एंड व्हाइट स्कोर कार्ड, वी हैव 2 वेरी स्पेशल स्कोर कार्ड. ये सिर्फ 2 ही ऐसे वाकयात हैं क्रिकेट की हिस्ट्री में. हमजा, अगर आप पढ़ सकें स्कोर कार्ड ये. जी, एक और स्कोर कार्ड दिखाइए. इसके साथ ही एक और स्कोर कार्ड है, बड़ा इंटरेस्टिंग स्कोर कार्ड है वो भी. और वो स्कोर कार्ड वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 2015 के क्रिकेट वर्ल्ड कप का है, जिसकी यादें आज भी हमारे दिमागों में जो है वो जिंदा है. और उसके बाद नंबर 4 पे जो बैट्समैन आए थे, वो उन्होंने ऑलमोस्ट बैट कैरी करते करते रह गए, लेकिन उन्होंने काफी लंबा संभाला. जी हमजा, आपके सामने स्कोर कार्ड पढ़ के बताइए जरा. जी, बिल्कुल जी, ये पाकिस्तान का स्कोर कार्ड है जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ है. वेस्ट इंडीज का 2015 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में जो ऑस्ट्रेलिया में खेला जा रहा था, तो ये आइडेंटिकल पैटर्न नजर आया. ये क्रिकेट की हिस्ट्री में सिर्फ 2 मरतबा हुआ है, और दोनों मरतबा वर्ल्ड कप गेम में हुआ है, और दोनों मरतबा एशियन टीम के साथ हुआ है कि जब 4 बल्लेबाज जो हैं वो इसको इस तरह स्कोर पे आउट हुए हों. और जिस प्लेयर का मैं नाम ले रहा हूं कि जिन्होंने एंकर किया था पाकिस्तान से आके, वो मिसबाहुल हक थे. और आखिरकार पाकिस्तान का स्कोर 180 190 में चला गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिसबाहुल हक वाला एंकर हमें यहाँ इस श्रीलंकन इनिंग्स में नजर नहीं आया. इंडियन बॉलर्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं और रंगा जी से पूछते हैं
शामिल करते हैं कि डिसमिसिंग 3 ऑफ द टॉप 4 डक्स इन द ओडीआई, अतापतु जयवर्धने जोहान्सबर्ग में ये 2003 में, और फिर रॉय रूट स्टोक्स ओवल में 2022 में, और अब निसांका कुनरत्नी और समारा विक्रमा को बंबई में 2023 में। तो ये इंडियन बॉलर्स पहले भी ये काम कर चुके हैं। एंड शामी इज हैविंग, जितनी भी तारीफ की जाए शामी की, मोहम्मद शामी की, मोस्ट 5 विकेट हॉल हो गए हैं इनके इंडिया से इन द ओडीआई हिस्ट्री, मोस्ट विकेट्स फॉर द इंडिया इन द वर्ल्ड कप। जिस तरह के रंगा जी ने शुरू में बताया था कि 45 विकेटें इनकी हो चुकी हैं 14 इनिंग्स में। इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है जहीर खान का 44 विकेट्स का और जवाहरलाल श्रीनाथ का 44 विकेट्स का, जिन्होंने 33 और 23 मैचों में यह कारनामा सर अंजाम किया था, और इन्होंने 14 इनिंग्स में। सो ही इज अ क्विकर टू अचीव दैट। और ये बात आप बखूबी वाकिफ है कि ये 3 मैचों में जो उनकी वापसी हुई है, उन्होंने ये करतब दिखाया है। इसके अलावा एक और बड़ा वांटेड शो टीम इंडिया के फैंस के लिए बताना चाहूंगा कि फाइफर्स के बाद एक चीज होती है फोरफर्स, जिसमें आपने 4 विकेटें लेनी होती हैं। इंडिया के लिए एक साल में फोरफर्स मैं आपको बताता हूं कि मोहम्मद शामी इज द ओनली बॉलर इन द इंडियन हिस्ट्री जिन्होंने 2 बार ये 4-4 वाला कारनामा सर अंजाम दिया हुआ है। 4 दफा अब उन्होंने 2023 में यह कारनामा सर अंजाम दे चुके हैं, और इससे पहले 2014 में, 2014 में भी ये 4 4 ले चुके हैं। और अगर वो इस बार 2023 में इस वर्ल्ड कप में या अभी साल के अख्ताम तक एक और लेते हैं, तो ये एक बड़ा यूनिक रिकॉर्ड होगा जो अभी टीम इंडिया के अलावा और भी किसी के पास नहीं है। और एक और बात बताऊंगा आपको कि शामी हैज 7 नो 4 विकेट हॉल ओवरऑल इन द 14 इनिंग्स इन द वर्ल्ड कप। अगर मैं उठाऊं कि ऑल वर्ल्ड कप्स में उठा लूं, मोस्ट बाय एनीवन इन द हिस्ट्री। और 45 विकेट्स जो इनकी 14 गेम्स के अंदर नजर आ रही है मुझे, शामी नो नीड्स 4 विकेट्स इन द नेक्स्ट 4 गेम्स, जो वेरी पॉसिबल है टू ब्रेक द मिचेल स्टार्क रिकॉर्ड ऑफ फास्टेस्ट 50 विकेट्स फॉर द वर्ल्ड कप व्हिच ही हैज डन इन द 19। और शामी के पास 4 मैच हैं और 4 विकेटें, तो ऑब्वियसली वो ये 1-2 में अगर जिस तरह वो उनकी फॉर्म लग रही है वो चल सकते हैं। और ये जो स्टार का रिकॉर्ड है, आई थिंक इट इज जस्ट एट द एज। योर से रंगा जी। I think very impressive. Mohammad Shami has been a great asset for the Indian team. Already World Cup में 2 fifers हो चुका है, एक 4-4 हो चुका है. So it's a matter of time before he can pick up the other 2 wickets. मैं जाते जाते आज के पैनल से मैं इजाज़त लेना चाहूँगा, मगर जाते जाते I think I'd like to say that it's a great place to be in for India and for the Indian fans, but also we should be looking forward to our upcoming game. So I know the next topic of discussion is the upcoming game for today. तो मैं अगर हमजा जी की इजाज़त हो तो मैं जाते जाते आज का मेरा प्रेडिक्शन दे जाऊंगा. I don't want to sit on the fence, but I have a big heart for Afghanistan, so I think I would give it to Afghanistan because they will create a lot of flutter on the table. अगर आज को अफगानिस्तान जीत जाता है, they go to 8 points, they go above Pakistan, which makes the Saturday evening game a virtual knockout for Pakistan as well. So I know in the previous session when I was with all of you gentlemen, we spoke about other teams bringing Pakistan forward. Joe, yes, New Zealand helped them out, and but now Pakistan has a genuine chance, and it's now in their own hands. आगे जाकर उनको खुद को खेलना है, खुद को अच्छा खेलना है आगे चलने के लिए. मगर I think it'll be a great place to be in for all the cricket enthusiasts, and I'm looking forward to today's game as well. But रंगा to जी, India जाने से and पहले एक बात आपसे हाँ जी. शेयर करना चाहूंगा आपके जाने से पहले, कि जो शामी का जो रन था ये 3 मैचेस के अंदर, उनको जब पांड्या की जगह लेके आया गया तो 3 मैचेस में जो 14 विकेट्स लिए हैं, तो मुझे एक चीज याद आ रही है, मैं जरूर आपसे शेयर करना चाहूंगा कि अगर आपको याद हो एक नाम प्यालो रॉसी, आर यू फेमिलियर विद द नेम? Yes, Italian soccer. इटालियन सॉकर प्लेयर नंबर 10। सो प्यालो रॉसी ने 1982 के वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल से पहले पहले उन्होंने कोई गोल स्कोर नहीं किया था, एंड ही वाज द सेंटर फॉरवर्ड, और वो पीक प्लेयर थे उस वक्त, और उनके काफी स्कैंडल्स भी चल रहे थे, कुछ उनके प्रॉब्लम्स हुए थे, कुछ ड्रग स्कैंडल्स और ये वो। और उसके बाद 1982 के वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल से ऑनवर्ड उन्होंने गोल किए, हैट्रिक की अगेंस्ट द, और उसके बाद सेमीफाइनल में उन्होंने हराया जर्मनी को, उस वक्त ब्राजील को, उस वक्त की बेस्ट टीम को, और उसके बाद जर्मनी को फाइनल में, जो उस वक्त की सेकंड बेस्ट टीम थी ब्राजील के बाद। एंड देन ही वन द गोल्डन बूट आफ्टर स्कोरिंग 7 गोल्स आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम क्वार्टर फाइनल। तो मुझे ये बुमराह का जो रन है, ये लुक्ड लाइक टू मी द रन ऑफ प्यालो रॉसी। जी गुरप्रीत जी।
सॉकर के सुपरस्टार की बात किया और उसको फिर शामी से रिलेट किया है। एब्सोल्युटली दोनों में समानताएं लग रही हैं, क्योंकि शामी ने भी लेट शुरुआत किया है इस वर्ल्ड कप में, बिकॉज द टीम कॉम्बिनेशन डिड नॉट अलाउ इंडिया टू प्ले 3 सीमर्स, बिकॉज हमारे पास हार्दिक पांड्या थे। तो जैसे हम देखते हैं कि उनको इंजरी हुई है तो एक डोर बंद होता है तो दो खुल जाते हैं। तो मे बी दिस गेव अस द अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज कि अगर हम तीनों फास्ट बॉलर को खिलाते हैं और साथ में पांड्या को खिलाते हैं, प्लस वी हैव 2 स्पिनर, दैट गिव्स अस आवर बॉलिंग अटैक, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट संडे को हमें नीडेड होगा, और उसके बाद क्योंकि हमने ऑफिशियली सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं तो सेमीफाइनल में भी ज़रूरत पड़ेगी। सो लेट्स होप जल्दी से जल्दी पांड्या जो है जी ठीक होकर टीम में वापस आ जाए। जी बिल्कुल जी। और जहाँ शामी की तारीफें हम कर रहे हैं, वहीं पर तारीफ के काबिल एक और भी बात है कि अगर मैं इंडिया की वर्ल्ड कप हिस्ट्री उठाऊं तो उस रिकॉर्ड में शामी के पास अब 5 विकेट हॉल 3 है, जबकि शामी के अलावा बाकी इंडिया के पास, जिस तरह मैं रोहित शर्मा की बात करता होता हूं कि पूरी इंडिया के 19 छक्के और इनके अब 35 छक्के पावर प्ले में, तो अब इनके 5 विकेट हॉल और 5 विकेट हॉल जो भारत की तरफ से हुए हैं, इनके अलावा वो 5 खिलाड़ी जो है वो शेयर कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, कपिल देव, रॉबिन सिंह, वेंकटेश प्रसाद, आशीष नेहरा और युवराज सिंह, इन सब ने एक एक फाइफर लिया हुआ है वर्ल्ड कप गेम्स के अंदर, और अकेले शामी ने 3 लिए हैं। तो दिस शोज द क्लास ऑफ शामी, और दिस शोज द ब्रिलियंस, एक स्मूथ रन अप और कोई फ्लॉ नहीं लगता। लगता है कि जब भागते हुए आ रहे हैं, डिलीवर करते हैं साइड एक्शन, तो लगता है कि कोई बॉलिंग मशीन जो है वो डिलीवर कर रही है बॉल को। बुमराह की थोड़ी सी तारीफ करना चाहेंगे कि बुमराह ने आज जो विकेट ली फर्स्ट बॉल के ऊपर, ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू टेक द विकेट ऑन द वेरी फर्स्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इन द वर्ल्ड कप गेम। आज से पहले किसी भारतीय खिलाड़ी ने यह कारनामा सर अंजाम नहीं दिया। बुमराह की जो मूवमेंट हो रही थी वो इतनी मुतासिर कौन थी कि मैं हैरान था कि व्हाट ही इज डूइंग एंड वेयर इज जनरेटिंग। और मुझे लगता है गुरप्रीत जी कि श्रीलंकन बल्लेबाज थोड़ी जल्दी कर गए। जो मूवमेंट थी बॉल की, वो अगर आपने गौर किया हो तो पहले 10 से 12 ओवर के बाद बॉल नॉर्मल होना शुरू हो गया था। शुरू के जो ओवर थे लाइट्स के अंदर, वो अगर ये थोड़ा सा हौसला करते और वहां पर थोड़ी फीट मूवमेंट करती, किसी भी श्रीलंकन बल्लेबाज ने अपने कदम नहीं बाहर निकाले, मूव ही नहीं किया अपना, इतने वो डरे हुए थे। आई थिंक कि वैन खड़े का एटमोस्फेयर, रोरिंग फैंस, ऊपर से जो लाइट्स के अंदर जो प्रेशर था उनके बॉलर्स को, जो उनके रन अप के साथ जो क्लैप मिल रहा था, आई थिंक कि सारी चीजें उन पे नेगेटिव होके पड़ी। और थोड़ा सा वहां अगर वो सस्टेन कर लेते, देखिए ये काम होता है वन डाउन का। यहाँ बस संगाकारा जैसा बैट्समैन होता और जो थोड़ा सा यहाँ स्टेबल करता, देर वाई दैट्स वाई यू नीड सम मैच्योर इनिंग्स बाय द नंबर वन डाउन। वन डाउन कितना इंपॉर्टेंट है, ये कमी मुझे बड़ी शिद्दत से महसूस हुई कि यहाँ संगा जैसा खिलाड़ी होता तो वो इंडियन प्रेशर को एब्जॉर्ब करता, वहां खड़ा होता और ये पहले बस 13 ओवर निकाल लेते, पहला स्पेल निकालते बुमराह का और शामी का। मैं ये तो नहीं कहता कि फिर कुलदीप को छक्के लगाना शुरू हो जाते, लेकिन थिंग्स वुड हैव ईज्ड डाउन ऑन द पिच। जी बिल्कुल, और जैसे आप देखें कि हाईएस्ट स्कोर शायद 14 था, और जब लास्ट वाले आफ्टर 7th विकेट वालों ने 14 रन बनाए और उनका जो शामी को स्ट्रेट बैट से खेला है, तो यू कुड सी कि बॉल जो बैट पे प्रॉपर आनी शुरू हो गई थी, स्विंग और सीम कम हो गई थी, तो कहीं ना कहीं उनका उनकी अडेप्टेबिलिटी थी जो, उसमें वो बिल्कुल नाकामयाब रहे हैं। और उन्होंने इस तरीके से नहीं खेला, ना तो उन्होंने आगे बढ़ के उसको जो स्विंग हो रही थी बॉल उसको कंट्रोल करने की कोशिश करी, और ना ही उन्होंने जो बैट और पैड के बीच में गैप था वो कॉम्पैक्ट बिल्कुल क्रिकेट नहीं खेली। जब इंडिया ने बैटिंग करी है तो शुभमन गिल ने बाद में इंटरव्यू में भी बोला था कि बॉल काफी मूव हो रहा था, और विराट कोहली ने मुझे आके बोला था रन्स की चिंता मत करो, बट प्ले स्ट्रेट एंड प्ले कॉम्पैक्ट क्रिकेट, रन अपने आप बाद में बन जाएंगे इफ वी स्टे ऑन द विकेट। तो वो जो चीज थी वो श्रीलंका नहीं कर पाया। अगर वो भी उस तरीके से खेलते, 10-12 ओवर वहां पे काट लेते, तो थिंग्स वुड हैव बीन टोटली डिफरेंट, बिकॉज वहां पे ड्यू भी आ गया था और बॉल बैट पे अच्छा आना शुरू हो गया था अंडर लाइट्स। जी बिल्कुल जी। बहरहाल जी, अगर वो वेट कर लेते तो उनको आज ये हालत ना देखनी पड़ती, कुछ रिस्पेक्टेबल टोटल से हार जाते। 55 इज द लोएस्ट टोटल टीम गॉट ऑल आउट
in the World Cup match in the ODI against India. जो previous lowest है against India वो UAE के टीम का है जो 28 फरवरी 2015 को ऑस्ट्रेलिया में 102 रन पे ढेर हो गए थे. लेकिन अगर मैं बात करूं टीम श्रीलंका की तो 55 is the lowest total श्रीलंका got all out in a cricket World Cup. इससे पहले ये अनवांटेड कारनामा उन्होंने पहले क्रिकेट वर्ल्ड कप में 1975 में किया था अगेंस्ट द क्लाइव लॉयड्स वेस्ट इंडीज ऑन 7th of June 1975 जब वो 86 रन पे आउट हो गए थे. तो आई थिंक जो बात गुरप्रीत जी ने की बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर वो थोड़ा वेट करते जिस तरह उनकी टेल खेली तो थिंग्स कुड हैव बीन. मैं ये तो नहीं कहता कि इंडिया को हरा देते बट थिंग्स वुड हैव बीन इन द डिफरेंट शेप. और इंडिया के बारे में बात कर लें जी जाते जाते आप अगले मैच पे आना है प्रेडिक्शंस पे. तो उससे पहले पहले कि इंडिया हैव नाउ लॉस्ट 3 out of 24 मैचेस जो क्रिकेट वर्ल्ड कप में लास्ट 3 वर्ल्ड कप्स में हुए हैं 2003, 2019 एंड 2015. इंडिया उसमें से 3 मैच हारा है. ख्याल रहे कि इंडिया उसमें से 2 मैच वो हारा है जो नॉकआउट गेम्स थी सेमीफाइनल्स. तो ये सोचने की बात है कि दोनों मरतबा वो हारे ओशियाना जोन से. ओशियाना जोन कौन है? टीम ऑस्ट्रेलिया. ओशियाना जोन कौन है? टीम न्यूजीलैंड. सो टीम टू वॉच ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. तो भाई इसीलिए कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड को बाहर निकालो पाकिस्तान को अंदर करो. जी हमजा. Is Afghanistan versus Netherlands, a very good match. Both teams have came. Afghanistan has been there for longer than Netherlands and have made a larger and a bigger impact. But Netherlands have a bigger heart as well, and they're trying to make their space. But if Afghanistan wins tomorrow, then as per every one of our analysts has said, the table would change. Afghanistan might go over because of their net run rate, and things would change dramatically for Pakistan. So let's start with Gurpreet ji. Gurpreet ji, what do you think of tomorrow, and what are the chances? जी बिल्कुल, कल एक बहुत अच्छा मैच होएगा. दोनों टीमें जो आप कह सकते हैं कि अफगानिस्तान आई वुड थिंक इज लिटिल बिट अबव पार कंपेयर टू नेदरलैंड, लेकिन लखनऊ में है शायद ये मैच, और आई थिंक वी विल सी नूर बैक इन एक्शन वन मोर टाइम. और अगर हम बॉलिंग की बात करते हैं तो आई विल गिव एज टू अफगानिस्तान इन टर्म्स ऑफ देयर स्पिन बॉलिंग अटैक. एंड अगर बैटिंग की भी हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान के जो बैट्समैन हैं वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट तरीके से खेल रहे हैं. नेदरलैंड के जो बैट्समैन है ओपनिंग या उनका जो बिगनिंग के 4-5 बैट्समैन है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे. समहाउ देयर लोअर मिडल ऑर्डर इज परफॉर्मिंग वेरी गुड. लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल कॉम्बिनेशन के साथ अफगानिस्तान हैज़ एन एज, और कल आई एम गिविंग अफगानिस्तान 55-45. जी बिल्कुल जी. ये एकना स्टेडियम लखनऊ में ये मैच खेला जा रहा है जो अफगानिस्तान वर्सेस नीदरलैंड्स है. तो लगता यही है कि अफगानिस्तान शुड गो इजीली क्योंकि अफगानिस्तान की टीम को अब टीम पाकिस्तान ने मैच्योर कर दी है और काफी मैच्योर कर दी है. एंड द वे दे आर प्लेइंग, द वे देयर कॉन्फिडेंस वेंट अप इन अ चेज, नॉट ओनली द चेज, कैलकुलेटेड चेज अगेंस्ट पाकिस्तान. टीम पाकिस्तान की बॉलिंग बेशक वो इस वर्ल्ड कप में अप टू द पार नहीं है. इंजरी कंसर्न्स कुछ उसमें मुश्किलात हो रही हैं पर फिर भी साइकोलॉजिकली batting in a chasing contest against Team Pakistan, which was always a challenge in their minds back from their childhood. From there, they have learned the things from the laps where they have been born, and they were learning the things over the passage of time. So, after the calculated victory against those from their masters, that confidence when it comes to your brain and when the the brain cells and the midbrain is giving the feed and there is a new calculation going on, then everything on the trot you won't leave it. So whatever comes next, so whether it's England, whether it's other team, but right now the team is Netherlands. So I think their chances are quite good and they will be quite confident. Netherlands, no doubt, no question. मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इनको अंडर रेट कर रहा हूँ. स्कॉट एडवर्ड्स हो या डिलीडा हो, बीकन हो, इनमें पूरी सलाहियत है मैच में वापस आने की. कुछ भी हो सकता है. I want to see some thriller
लेकिन मुझे लगता है कि अफगानिस्तान को इनको कंट्रोल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैं इनकी बॉलिंग की कोई तारीफ नहीं करूंगा। मुझे मालूम है, आपको भी मालूम है, सबको मालूम है कि राशिद खान और मुजीब या नूर जिसको भी खिलाते हैं व्हाटएवर, या उनकी फास्ट बॉलिंग, उनमें क्या सलाहियतें हैं। लेकिन मेरा जो वोट अभी जो गया है कि मैं इनको 60-40 दूं ओवर द नीदरलैंड्स, दैट इज बिकॉज ऑफ देयर बैटिंग प्रैक्टिस इन द चेजिंग कॉज। दे हैव बीन मैच्योर्ड, दे डोंट पैनिक। सो I think Afghanistan will go smoothly in the chase if they go. Well, thank you for your in-depth analysis for today's and tomorrow's match. And after tomorrow's match, there is another big match, and two matches are coming. One is we're looking forward for the Pakistan one, and the other one as well. So I that's call it end for the day, and we will join you tomorrow after the Afghanistan Netherlands match, and we will discuss the pre-match for Pakistan versus New Zealand, and everything will go on from there. I am your host signing off, thanking of my sports analyst Dr. Adnan Khan and Gurpreet Purbaji. Ranga has just left before that, so virtually saying thank you to you as well, and thank you to all our viewers who are watching us constantly from couple of days now. Thank you really very much for joining us. We will be again tomorrow here, and you can watch us on Facebook and YouTube and live on our N6 TV channel. Keep watching us. Thank you very much. I'm signing out and signing out from Matchpoint. Thank you all.